قرضہ نہیں لیا پاکستان نے؟ جواب ہے کہ 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں اس حکومت نے لیا، اور وہ صرف اپنی چوری، جو دونوں، اگر آپ کو میں نے جو پچھلے ڈاکوں کی ایک فگر بتایا ہے، 400 ارب، 250 ارب، 122 ارب، 600 ارب، 300 ارب، یہ جو ان کی اپنی کمیشن رپورٹس کہہ رہی ہیں، جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کمیشن بناتے ہیں، عمران صاحب اس کمیشن کو پھر یوں کاغذ لہراتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک کام ہے کہ وزیر اعظم نے ڈاکہ ڈالنے پر کمیشن بنایا، لیکن کیا جہانگیر ترین آج جیل کے پیچھے ہے؟ کیا خسرو بختیار صاحب گرفتار ہیں؟ کیا عامر کیانی صاحب دوائیوں پہ ڈاکہ ڈالنے پہ آج گرفتار ہیں؟ کیا عمران صاحب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے کیونکہ ان کے فیصلے سے یہ جتنے نقصان پاکستان کی عوام اور جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا؟ کیا کسی کمیشن کی رپورٹ میں عمران صاحب پیش ہوئے؟ اس کے بعد قرضہ، معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، کیا آج عوام کو 1 کروڑ نوکری ملی؟ یا 60 لاکھ لوگ پچھلے 2.5 سال میں بے روزگار ہوئے؟ یہ 5واں سوال تھا۔ اور اس کے بعد کیا عوام یہ آج پوچھتی ہے کہ کیا 2.5 سال میں صحت اور تعلیم کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بنی؟ کیا نئے ہسپتال بنے؟ کیا ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوا یا مفت علاج اور دوائی ختم ہو گئی؟ 2.5 سال میں مفت علاج اور دوائی اور ٹیسٹ جو پچھلی حکومت میں ہوتے تھے پنجاب میں اور وفاق میں، وہ آج ختم ہے۔ کسی ہسپتال میں ایک نیا کمرہ تعمیر نہیں ہوا، تعلیم کا بجٹ آدھا کیا گیا، وظائف بند کیے گئے، فیسوں میں اضافہ کیا گیا، اور یہ وہ ٹھیکیدار تھے جنہوں نے تعلیم اور صحت کا نظام بہتر کرنا تھا۔ کیا 1 میگا واٹ سسٹم میں ڈالی گئی؟ 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر بجلی کو دستیاب کر کے نواز شریف نے عوام کو دیا تھا۔ کیا بجلی اور گیس مہنگی یا سستی ہوئی؟ 2.5 سال کے اندر 1 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوئی، اور 122 ارب کا ڈاکہ صرف ایل این جی کی مد میں، جو صرف تاخیر سے منگانے کے اوپر، ابھی جو فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر منصوبے چل رہے ہیں پاور پروجیکٹس ندیم بابر صاحب کے، اس کا 25 ارب ماہانہ جو عوام دے گی وہ اس 122 ارب سے الگ ہے۔ ڈومیسٹک سطح کے اوپر جو گیس ہے وہ 800 روپے پر یونٹ ہوتی تھی 2018 میں، جو 1400 روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے۔ انڈسٹری 600 روپے پر یونٹ ہوتی تھی 2018 میں، جو 1000 روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے۔ بجلی، کیا بجلی سستی ہوئی؟ آپ نے بجلی پیدا نہیں کی، آپ میں اہلیت نہیں تھی، لیکن آپ کی چوری کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے، جو 11 روپے پر یونٹ بجلی تھی 2018 میں، آج وہ 18 روپے پر یونٹ کے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا تھانہ کلچر بہتر ہوا؟ کیا انصاف کا جو نظام ہے اور انصاف کی جو فراہمی ہے وہ بہتر ہوئی؟ آپ نے اپوزیشن کو آتے ہی جھوٹے الزامات لگا کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جو عدالتوں سے سرخرو ہوئے۔ ابھی بھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، پنجاب کے بھی حمزہ شہباز اور نیشنل اسمبلی کے شہباز شریف صاحب۔ کوئی بات نہیں، ہم حساب دیں گے، ہم ایک ایک پائی کا حساب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن کیا عام شہری کو انصاف کی فراہمی آسان ہوئی؟ انصاف مہیا ہوا؟ کیا انصاف کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نیب جیسے ادارے جو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے، کیا ان کا احتساب ہوا؟ کیا حکومت میں بیٹھے عمران صاحب کے اے ٹی ایم دائیں اور بائیں بیٹھے، کیا ان کا احتساب ہوا؟ عمران صاحب کہتے تھے کہ احتساب میرے سے شروع ہوگا۔ کیا بی آر ٹی پشاور کا احتساب 126 بلین کا حساب ہوا؟ کیا بلین ٹری سونامی کا حساب ہوا؟ کیا 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں آپ نے جواب دیا 7 سال مفرور الیکشن کمیشن سے؟ کیا آٹا کمیشن کی رپورٹ آ کر اس کا احتساب ہوا؟ کیا ہیلی کاپٹر کیس کا حساب ہوا؟ کیا ملک کے اندر چینی چوری ہو گئی، کیا اس کا حساب ہوا؟
क्या LNG की रिपोर्ट और ऑयल की करप्शन की रिपोर्ट आई, क्या उसका हिसाब और एहतसाब हुआ? जवाब नफी में नहीं हुआ। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि क्या पाकिस्तान 2.5 साल में आलमी सतह पे पाकिस्तान के वक़ार में और उसकी इज़्ज़त में और उसके मकाम में फ़र्क आया? वो बेहतर हुआ। आज कोई मुल्क इन झूठों से, इन चोरों से, इन नालायकों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर सतह के ऊपर फॉरेन पॉलिसी में नाकामी हुई। क्या कश्मीर की आज़ादी की मंजिल करीब आते इनके दौर में नज़र आई? नहीं, कश्मीर का सौदा हुआ, कश्मीर मोदी की झोली में डाला गया। और क्या इमरान साहब 1 करोड़ नौकरी आपने देनी थी, जैसे मैंने पहले कहा कि 60 लाख लोग बेरोजगार हुए, लेकिन नौकरियां मिली उन तमाम नालायकों को जो कहीं किसी अदारे में चौथे सतह पर या 5वें सतह पर काम कर रहे थे। नौकरियां मिली इमरान साहब के दोस्तों को, नौकरियां मिली उन बेरोजगारों को जो इमरान साहब के ATM चलाते थे, जिन्होंने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में इमरान साहब की मदद की, मुल्क के अंदर इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से पैसा भेजकर मुल्क के खिलाफ साजिश की, जिसके नतायज आपको जो मैंने सवाल बताए उसमें नजर आ रहे हैं। 50 लाख घर। क्या 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम पूछती है, आपने वादा किया था कि आप 50 लाख घर देंगे, क्या 2.5 साल में 25 लाख घर आपने दिए? क्या आपने एक घर आप कैमरे से दिखाएं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 50 लाख घरों के वादे में से आपने एक घर भी पाकिस्तान की आवाम को दिया हो? लेकिन 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल में एक काम ज़रूर हुआ कि साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, साकिब निसार साहब ने एक जाली एफिडेविट, झूठे सर्टिफिकेट्स के ऊपर इमरान साहब को NRO तो ज़रूर दिया, लेकिन आज उस साकिब निसार साहब के NRO के ऊपर 12 लाख रुपए देकर इमरान साहब ने अपना गैर कानूनी घर को रेगुलराइज कराया। इसमें आमिर कियानी साहब को 12 लाख रुपए का नुकसान ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि इमरान साहब ने तो 12 रुपए कभी अपनी जेब से नहीं दिए, लेकिन आमिर कियानी साहब ने अद्वियात की मद में काफ़ी पैसा कमा लिया है, तो 12 लाख रुपए का कोई मसला नहीं। ये इसी तरह होता है कि 50 लाख घर, आवाम को एक घर भी नहीं, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे कभी कर्जा दे दें, कभी 50% एडवांस दे दें, कभी 10% एडवांस दे दें, कभी फॉर्म भर दें, नादरा के आगे लाइन लगवा दें, मजाक किया गया आवाम के साथ। क्या 2.5 साल में पाकिस्तान की आवाम को, सवाल मुख्तसर है, एक घर भी मिला? लेकिन एक घर 2.5 साल में बाय लॉज की तब्दीली की गई, पूरे महकमे को लगाया गया कि 2.5 साल में इन बाय लॉज में और कवानीन में तब्दीली की जाए, और साकिब निसार साहब का NRO जो झूठे सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट के ऊपर मुश्तमिल था, आज उसका जवाब मिल गया। अगर ये रेगुलराइज कराया गया है तो इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी था, वो एक NRO था जो साकिब निसार साहब ने इमरान साहब को दिया था। उसके बाद क्या 2.5 साल में अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, बकरी, उनके ज़रिए मईशत पाकिस्तान की आवाम की और मुल्क की ठीक हुई? क्या किसी पाकिस्तान के शहरी को अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, बकरियाँ मिली जिन्होंने उनकी मईशत को ठीक करना था? बल्कि जो लोग ये काम कर रहे थे, आज महंगाई उस सतह पर पहुंच गई है कि उनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं। उसके बाद सीपैक के ऊपर आते ही यलगार हुई इस सिलेक्टेड हुकूमत की, नालायक लोगों की, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ बुग़्ज़ में सीपैक के ऊपर उसको मुतनाज़ा बनाया गया, उसको रोकने के ऐलानात किए गए। उसके 2 हिस्से थे, एक हिस्सा था वो मंसूबे जो नवाज शरीफ लगा गया, एक हिस्सा था वो मंसूबे जिनसे आज पाकिस्तान की आवाम फ़ायदा उठा रही है, दूसरा हिस्सा था वो इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट और कंपनियों में पाकिस्तान में करनी थी। उसके ऊपर 6 जोन्स
नवाज शरीफ साहब बना गए थे, जो जोन्स शुरू होने के करीब थे। आज 2.5 साल में एक भी जोन ना मुकम्मल हुआ और ना चला। सीपैक के अंदर एक भी नया मंसूबा सीपैक में 2.5 साल में नहीं लगा, बल्कि सीपैक आगे बढ़ने की बजाय जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी नहीं आई। एक जॉइंट कमीशन की 6 मंथ्स में मीटिंग होती थी, जिसमें प्लानिंग मिनिस्टर चाइना का और पाकिस्तान का बैठता था, वो नए प्रोजेक्ट्स डिस्कस करता था। आज 1 साल हो गया, एक भी मीटिंग नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आज किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। किसी भी नए प्रोजेक्ट को सीपैक की पार्टनरशिप में नहीं लेके गया। एक भी नया मंसूबा नहीं आया, बल्कि जो मंसूबे और इकोनॉमिक जोन्स बनने थे उनमें से एक भी जोन, जो नवाज शरीफ साहब 6 जोन्स तैयार करके देकर गए थे, उनमें से एक भी जोन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो इस वक्त अभी मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करूँगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद ही जो कराए के तर्जुमान हैं उनकी जो पंजाब में और वफाक में जो उनकी टीमें हैं वो मुझ पर पर्सनल अटैक, हमारी हुकूमत को चोर और ये भी कहेगी कि ये तमाम चीज़ें जो मरियम औरंगज़ेब ने बताई हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से हुई है, वो पिछले अदवार के फैसलों की वजह से हुई है। लेकिन जिस वक़्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये मुल्क चला रहे थे उस वक़्त महंगाई की सतह 3% पर 2018 में थी। आज वही महंगाई की सतह 14% के ऊपर हो गई है। 40% रुपया डीवैल्यू होने के बावजूद ना महंगाई में कमी, ना टैक्स की वसूली हो सकी, ना उसके टारगेट्स हो सके, ना मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ सकी, ना मुल्क का कर्जा ख़त्म हो सका। और जो रोज़ कंटेनर के ऊपर कहते थे आज बिजली के बिल जला दो, आज हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाओ, सिविल नाफरमानी की तकारीर करते थे, पुलिस वालों के सर फाड़ने के ऐलानात करते थे, मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे लगाते थे। आज उन कराए के तर्जुमानों और वज़ीर आज़म सिलेक्ट वज़ीर आज़म से मेरी दरख्वास्त है कि वो जवाब दें इन बातों का कि 2.5 साल में मुल्क ने क्या खोया, क्या पाया। सब कुछ खोया और कुछ नहीं पाया। ये वो तमाम रिपोर्ट्स हैं जो इन्होंने खुद कमीशन बनाए और कहते हैं हमने कमीशन बनाकर बहुत बड़ा एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम किया है जो पिछली किसी भी अदवार में नहीं हुआ। अगर पिछले अदवार में इतनी चोरी होती तो इतने कमीशन बनते। अगर पिछली अदवार में आटा जो है वो 35 रुपये से 90 रुपये किलो होता, पिछले अदवार में 52 रुपये, चीनी 120 रुपये किलो होती। आप सिर्फ, मेरा कराए के तर्जुमानों को एक पैगाम है और इमरान साहब को, आप सिर्फ 2.5 साल में पाकिस्तान की आवाम को ये जवाब दें कि क्या मुल्क के अंदर बेरोज़गारी कम हुई, मईशत ठीक हुई, महंगाई कम हुई, मुल्क के अंदर थाना कल्चर और इंसाफ की फरहमी हुई, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट और बिजली के मंसूबों में इजाफा हुआ, मुल्क के अंदर बिजली गैस सस्ती हुई। और जो अदादो शुमार मैंने आपको बताए हैं उनको चैलेंज करें। रोज़ एक खबर आती है वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली वज़ीरों से। तो खास वज़ीरों ने आपको कारकर्दगी बतानी है जब मुल्क का वज़ीर आज़म डाका डालता हो, जब मुल्क का वज़ीर आज़म माफिया को इनकरेज करता हो, जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ATM के हाथों मुल्क को दोनों हाथों से लूटने का प्लान बनाता हो और स्ट्रैटेजी बनाता हो, तो उस मुल्क ने 2.5 साल में क्या अचीव करना है। हाँ, एक ज़रूर अचीव हुआ कि मुल्क के अंदर मीडिया की ज़बान बंदी हुई, पार्लियामान को ताला लगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल हुआ, सियासी मुखालफीन को झूठे इल्ज़ामात पर सजाए मौत की चक्कियों में डाला गया, अदारों को इस्तेमाल करके। और अभी भी क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खौफ में मुब्तला हैं, तो रोज़ बयान देते हैं, रोज़ तर्जुमानों का इजलास तलब करते हैं, रोज़ स्ट्रैटेजी मीटिंग करते हैं कि किस तरह
किस तरह हमने मीडिया को कंट्रोल करना है, ऑपोजिशन को कंट्रोल करना है, पार्लियामान को कंट्रोल करना है और